بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दुख तकलीफों को खत्म कर दे, आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह पाक आपको 5 वक्त का नमाजी बना दे, अमलियात की दुनिया में आपको कामयाब कर दे। इसी के साथ आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ, बहुत ही नायाब और बहुत ही अलग किस्म का अमल है। जो भी अमल आपके साथ पेश किया जा रहा है बहुत आसान है और बहुत नायाब है। आप लोगों को कभी खुदा न खास्ता ये न लगे कि हम तौबा नऊज़ बिल्लाह अमल में गलती होती है, नहीं, आपके पढ़ाइयों में कुछ गलती होती है तो आपने इसका मुशाहिदा करना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों के ऊपर इस अमल को आप करके देखिएगा, तो फिर इंशाअल्लाह जरूर आप कामयाब होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने बच्चों के ऊपर ये अमल करना है। तो आपने अगर खुद पर करना चाहते हैं उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। आपने मगरिब से पहले खुशबू लगाकर पाक साफ कपड़े पहनकर तो आपने जब है अमल करना है तो हथेली के ऊपर स्याही यानी काजल जरूर लगाना है, जो आपको बताया गया है। हाजरती काजल लाजमन लगाइएगा, ठीक है, तो वो लाजमन है। जब भी आपने अगर किसी बच्चे के ऊपर करना है तो फिर 10 बजे का टाइम है। देखिए, जो आमिल होता है उसको इन अमलियात की बहुत जरूरत होती है, हर वक्त वो खुद पर अमल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो बच्चों के वक्त से ही जो सा है अमल करे तो वो ज्यादा चलता है। बच्चा कोई हो तो पास तो फिर उसके लिए बहुत नायाब होता है कि चलो बच्चे के वक्त से बच्चों के तरीके से उनको हाजरात के बारे में मालूम कर सकें या अपने कोई और मसले के बारे में मालूम कर सके। उन बहनों के लिए एक बहुत नायाब एक बात मैं आपको कहती जाऊँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके ऊपर आपने हाजरात करवा चुके हैं तो उसका एक फायदा यह है कि आप जब भी उस बच्चे के ऊपर हाजिरी हो ना तो बच्चे को पता होगा कि वो कैसे, जैसे वो दिल में उनको याद करेगा तो बच्चे के पास वो हाजिर हो जाएंगे। तो बच्चे से कहिएगा कि आप उनसे पूछें कि आपको बुलाने का तरीका क्या है। तो जब वो खुद भी बुलाने का तरीका वो बच्चा बता देगा कि बुजुर्गों ने ये तरीका बताया है या मोकलीन ने ये तरीका बताया है हाजिरी होने का, तो वो हाजिरी का तरीका आप लिख लीजिएगा और फिर खुद भी बगैर किसी आमिल के भी उस बच्चे के ऊपर हाजिरी आप करवा सकते हैं और अपने वक्त में बात जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। लेकिन शरीयत के खिलाफ बात आप कभी ना पूछिएगा, वरना आप गुनाहगार खुद होंगे। तो आपने जब भी हाजरात जब करवानी है तो आपने जो मेरे ऊपर आपको इबारत पढ़ के सुनाने लगी हूँ ये आपने जरूर पढ़नी है और बच्चे के ऊपर पढ़कर दम करना है या खुद के ऊपर दम करना है, ठीक है। ला इलाहा ला दे इल्लल्लाह बतला दे, ला इलाहा ला दे इल्लल्लाह बतला दे, या हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम हाजरात दिखला दे, ठीक है। ये छोटी सी इबारत है, अजाइमत है, ये लाजमन कीजिएगा। ये ऐसे अमल हैं जो बुजुर्गों के माने हुए अमल हैं और बुजुर्गों ने इन अमलियात के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है जो हमें आसानी से मिल गई है, ठीक है। इनके ऊपर अल्लाह पाक ने एक एक मोकलीन की हाजिरी कर दी हुई है। हर जो ये अमल करेगा वो खुद इस चीज को देखेगा और जानेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, काजल जो है लगा लेना है हथेली पर या नाखून पर और स्याही के ऊपर गौर से नजर रख कर आपने देखना है और 11 मरतबा अव्वल आखिर पहले दुरूद शरीफ पढ़कर 28 मरतबा जो ऊपर मैंने आपको भी अलाइमत बताई है वो आप पढ़ेंगे 28 मरतबा, ठीक है। तो जब आप दम करेंगे खुद पर अगर कर रहे हैं तो खुद पर दम करें, हथेली पर दम करें। अगर आप बच्चे के वक्त से कर रहे हैं 10 बजे का टाइम है तो बच्चे के ऊपर और उसकी हथेली के ऊपर दम करें, तो इंशाअल्लाह फौरन मोकलीन का नज़ूल हो जाएगा। उससे आप जो मर्जी आप उनसे सवाल करें, शरीयत के खिलाफ आप सवाल नहीं करेंगे। पहले आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है और फिर उनसे हाल चाल पूछना है और फिर उनको आने की वजह बतानी है कि आपको किस लिए बुलाया गया है, ठीक है। और उसके बाद जब आप तमाम उनसे सवाल जवाब मुकम्मल तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए तो फिर उनको अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया अदा करके आपने रुखसत कर देना। उनके चले जाने के बाद आपने कोई मिठाई पास रखनी लाजमन है। उस मिठाई पर आप पढ़ाई करवा जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर दम करें और बच्चों में तकसीम कर दें, ठीक है। तो जो वो मिठाई खाएगा अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी बीमार नहीं होगा। और अल्लाह पाक से मिठाई को खाते हुए दुआ करें या दुआ मिठाई सामने रखकर दुआ करें कि अल्लाह पाक ये जो बुजुर्गाने मुकलीन हाजिर हुए हैं, ये जो मुकलीन हाजिर हुए हैं ये इसका मिठाई का स्वाब उन तक पहुंचा दे,
ٹھیک ہے، تو وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ضرور مجھ سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسکرین کے اوپر جو عبارت ہے وہ میں چلا دوں گی۔ نمبر 2، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل غلط نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ، عمل غلطی تو، لیکن آپ لوگوں کی ادائیگی کا جو ہے وہ طریقہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے، بہت ادب سے، تہذیب سے 28 مرتبہ پڑھیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، لا الہ لا دے الا اللہ بتلا دے، یا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام حاضرہ دکھلا دے، لا الہ لا دے الا اللہ بتلا دے، یا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام حاضرہ دکھلا دے۔ 2 مرتبہ میں نے آپ کو پڑھ دیا، 28 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ ضرور پڑھنے کی روانگی، پڑھنے کی ادائیگی اتنی خوبصورت ہو کہ فوراً حاضرات کا نزول ہو جائے۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت نایاب عمل ہے، لازماً کیجیے گا، چند منٹ کا عمل ہے، یقین مانیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔